A very good afternoon to all my dear friends participating in today's webinar entitled Autonomous Institute Benefits Unlimited. At the outset, I would like to acknowledge the efforts of Lokmat Group of Newspapers, You Are Next, and JD College of Engineering and Management for initiating this webinar. Autonomous Institute Benefits Unlimited. This is a subject in which all students will be deeply interested, as it will help in their decision making on choosing the best institute they would like to pursue their engineering education from. Our speaker today is an accomplished teacher par excellence and a professional with more than 3 decades of teaching experience. A proficient speaker who is confident and result oriented. I refer to Dr. Prashant B. Maheshwari, who is Associate Dean Academics, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University at Lonere. He is also Director, Jaydev Education Society, which runs JD College of Engineering and Management and JD Polytechnic. A mechanical engineer by profession, he has 2 PhDs to his credit. One from Rajiv Gandhi Technical Institute, Bhopal, and the second from RTM Nagpur University. He has also received the ISTE Best Engineering College Teacher Award of Maharashtra State for the year 2019. How can students benefit by being part of an autonomous institute? What are the options open to students from autonomous institutes? What is the teaching methodology adopted in autonomous institutes which is different? What are the benefits of autonomy to the different stakeholders of society? These and many other questions will be answered by Dr. Maheshwari today. Please join me in welcoming Dr. Prashant B. Maheshwari. Thank you, madam, for the kind words as an introduction. I am really thankful to the Lokmat Group of Newspapers, Lokmat, You Are Next, and JD College of Engineering and Management, who have given me an opportunity to present before all the participants present a very dynamic and burning topic of today's education scenario, that is Autonomous Institute Benefits Unlimited. Dear participants, I welcome you all in today's webinar. Good afternoon to all of you. So this is the first slide. Now we are starting with a very great person of this country. हमारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं ये, जिन्होंने पूरे विश्व के मानचित्र पर हमारे देश का परचम बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं. मैं उनके सम्मान में 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ. किसी को भी ना था उसके कद का अंदाज़ा, किसी को भी न था उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था. स्वामी विवेकानंद जी ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा, ये आपको स्लाइड पे भी दिख रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ. द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री लाइज इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स, देयरफॉर हाउ मच एंड इन व्हाट नंबर of the people of a country are educated, as also the quality of their education. See, you have to take a word from this slide, that is quality. क्योंकि ये जो शब्द क्वालिटी है इसको हम हमारी आगे की स्लाइड्स में बार बार रेफ़र करेंगे. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. अभी स्वामी विवेकानंद जी के इस मैसेज के बाद इस वेबिनार से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्या लेके जाएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. यस्टरडेज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन क्या था, टुमारोज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन कैसा है, 21st सेंचुरी एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि महाराष्ट्र की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है,
ये क्या है, कहाँ है, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑटोनॉमी, स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस इन इंडिया, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी, एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी, नीड ऑफ ऑटोनॉमी, फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑटोनॉमी, ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एक करके. और बिलीव मी, वॉट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर टुडे will definitely benefit you in terms of knowing all the aspects of Autonomous Institute. Now I would like to tell something about the organizing institute. JD College of Engineering and Management started in the year 2008 with all the branches, and recently there is an addition of very popular branch, and the branch with the advanced technology, that is artificial intelligence. This college is the first institution in the Vidarbha region to get affiliated with Dr. Baba Saheb Ambedkar Technological University, जिसे मैं अब आगे के डेलिब्रेशंस में D-BATU भी बोलूँगा. और ये हमारे क्षेत्र का पहला कॉलेज है जिसको एक्रेडिटेशन में ग्रेड A मिला है, और दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू बिकम ऑटोनमस अमंग्स द कॉलेजेस इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. And I extend my sincere thanks to JD College of Engineering and Management for giving me this opportunity. Let us see now actually we are starting with the autonomy deliberations. Yesterday's world of education, कल तक हम क्या पढ़ते थे. एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, कल तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंट्रिक था. स्टूडेंट्स सिर्फ टीचर के द्वारा दी हुई जानकारी को रिसीव करते थे. दे वेर रिसीविंग इंफॉर्मेशन और मैसेजेस, एंड दैट टू द इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस वेर वेरी लिमिटेड और थोड़े एक्सपेंसिव भी थे. हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉलेज की ज़रूरत है. इसीलिए आज का जो सिस्टम है टीचर सेंट्रिक सिस्टम, इसको स्टूडेंट सेंट्रिक बनाना जरूरी है. और स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठते थे तो उनका बड़ा पैसिव रोल हुआ करता था, और 15 से 20 मिनट के बाद वो क्लास में चल रही टीचिंग से थोड़ा सा फैड हो जाते थे, अपने आप को दूर महसूस करते थे. और टीचर भी जो हुआ करता था क्लास में, वो कंटिन्यूस बोला करते थे, थ्योरी पढ़ाते थे, और वो ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है, स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है. और रियल टाइम सिचुएशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ बहुत कम डिस्कस हुआ करती थी. और यहाँ पे क्या हो गया था कि जिस टाइप का एजुकेशन सिस्टम था, यहाँ पे किसी भी चीज़ को याद करने का इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता था बनस्पत स्किल डेवलप करना. अब देखते हैं कि यस्टरडेज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन से टुमारोज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में क्या फ़र्क है. Tomorrow's world of education, the major difference is the tomorrow's world of education is learner centric. यहाँ पे student और the learner is a very important element. Learner जिस टाइप की टीचिंग मेथोडोलॉजी चाहेगा उस टाइप की टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी. लर्नर जिस टाइप के सब्जेक्ट चाहेगा उस टाइप के सब्जेक्ट रहेंगे. जिस टाइप की असेसमेंट सिस्टम चाहेगा, जिस टाइप की इवेल्यूशन सिस्टम चाहेगा, उस टाइप की सिस्टम्स रहेंगी. कौन सा कोर्स वो पढ़ना चाहता है, कौन सा कोर्स उसे ठीक नहीं लग रहा, ये लर्नर डिसाइड करेगा. लेकिन जब ये फ्रीडम लर्नर को दी जाएगी तो फ्रीडम ऐसे ही नहीं आ जाती है. फ्रीडम के साथ स्टूडेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एंड हम लोग ज़्यादातर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अगर आपने स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा जो कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, आपने EDX और कोर्सेरा भी सुने होंगे जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन वो दूसरे देशों के प्लेटफॉर्म है, हमारे देश का प्लेटफॉर्म है स्वयं. तो अब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डोमिनेंस के कारण ऑनलाइन कोर्सेज की, और अभी आपने देखा होगा कोविड-19 सिचुएशन के चलते हुए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हैज़ गॉट द प्राइमरी एंड द फ्रंट स्पॉट इन द करंट एजुकेशन सिस्टम. और इसीलिए टुमारोज वर्ल्ड ऑफ द एजुकेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल इन वैरायटी, very reasonable, and the indigenous platform SWAYAM is providing all the courses free of cost to the students, and there are more than 2,500 courses which are there. And if I talk about especially the engineering and technology or the professional courses, लगभग 1300 courses
7 IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर बच्चों के लिए उपलब्ध कराए हैं। और यहाँ पर लर्निंग जो है वो लर्निंग कोई ऐसा शॉर्ट टाइम अफेयर नहीं है कि 4 साल इंजीनियरिंग कर लिया या मेडिकल कर लिया और लर्निंग खत्म हो गई। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग अफेयर। You see that even at this age of mine, I continuously learn many things every day, day in and day out. You must have heard a person of 70 years of age also learns continuously in terms of the various methods and various platforms of online learning, offline learning. अभी हम एक और चीज़ देखना चाहते हैं कि ये 21st century में what are the challenges as far as the education is concerned. The very important challenge before we teachers and the educational institutions is the engagement of the students, making the student engaged in the class, assuring or ensuring the attendance of the students more than 75% in the class. That is the very big challenge. लेकिन अगर हम tomorrow's world of education की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स अगर हम अपनाएंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। अभी कोविड-19 सिचुएशन के दौरान हमने एक प्रयोग करके देखा कि जो फिजिकल क्लासरूम में क्लासेस होती थी, कॉलेज में आके जो क्लास होती थी, उसमें बच्चों की अटेंडेंस और जो ऑनलाइन हमने उनको पढ़ाया और ऑनलाइन कोर्सेज करने को हमने जो दिए, उसमें अटेंडेंस में बहुत बड़ा फ़र्क था। ऑनलाइन कोर्सेज जब हो रहे थे तो बच्चे अपनी कंफर्ट से, अपने लेज़र से घर में पढ़ा करते थे और उनकी अटेंडेंस उसमें ज़्यादा हुआ करती थी। एंड दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टुडेज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और यस्टरडेज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड टुमारोज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। हियर इन टुमारोज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन वी वांट स्टूडेंट टू बी स्किल इक्विप्ड विद द स्किल्स, वी वांट स्टूडेंट्स टू बी इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स। और हम जो पढ़ा रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी टीचिंग लर्निंग क्लास में हो रही है वो टीचिंग लर्निंग थ्रू एग्जामिनेशन, थ्रू असेसमेंट्स वो वहाँ पर एनफोर्स की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास में कुछ और पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम में कुछ और आ रहा है। देयर शुड बी एन अलाइनमेंट बिटवीन व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लास एंड व्हाट आई एम आस्किंग इन द असेसमेंट tools or what I am asking the questions into the question papers, unit test, sessional examinations, quizzes, presentations. There should be a clear cut alignment. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और मैडम ने जिन्होंने मेरा परिचय दिया उन्होंने भी आपको बताया था कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एसोसिएट डीन एकेडमिक्स हूँ। हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी क्या है। देखिए, आपने नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, गोंडवाना यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, अमरावती यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। हर एक प्रदेश में बहुत सारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, एजुकेशन सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती है। लेकिन हर एक राज्य में, हमारे पूरे देश के जो 29 राज्य हैं, हर एक राज्य में एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी होती है। टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो होती है वो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक ही होती है। उस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में वो तमाम कॉलेजेस जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन देते हैं, जो प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से संबद्ध रखते हैं या संबंधित हैं या एफिलेटेड हैं, वो सभी तमाम तरह के जो कॉलेजेस हैं वो सभी कॉलेजेस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उदाहरण के बतौर। मान लीजिए आपको स्किन की कोई बीमारी है, तो आप किसके पास जाएंगे? अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो आप जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? आप जाएंगे उस डॉक्टर के पास जिसका स्किन डिसीजेज में स्पेशलाइजेशन है, जिसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। दांत की तकलीफ है तो कहाँ जाएंगे? डेंटिस्ट के पास जाएंगे। सिंपल MBBS के पास तो नहीं जाएंगे ना हम। इसी तरीके से जब हमारे को कोई विशेष तकलीफ़ होती है तो हम उस तकलीफ़ के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस, आर्किटेक्चर कॉलेजेस, ये सभी कॉलेजेस जो हैं, इन कॉलेजेस को उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं जिसको हम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने हमारे महाराष्ट्र राज्य में एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये मैंने आपको DBATU के बारे में बताया।
अभी हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमको ऑटोनॉमी लेना है, मान लीजिए किसी कॉलेज को ऑटोनॉमी लेना है, मैं आपको आगे जाके ऑटोनॉमस कॉलेज के बेनिफिट्स बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम ये तो समझें कि ऑटोनॉमी मिलती कैसे है। किसी भी कॉलेज को अगर ऑटोनॉमी लेना है तो वो मिलती कैसे है। अभी उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने 12th की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दी, उसके बाद 12th की मेन एग्जामिनेशन दी, और उसके बाद आपने कोई तो भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी, जिसको आप JEE बोल सकते हैं, नीट बोल सकते हैं, MHCET बोल सकते हैं। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके आपने आपके चॉइस के प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लिया। मतलब आप तीन स्टेजेस से गुजरे। पहली स्टेज थी प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज थी 12th एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड, और तीसरी स्टेज थी अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसी तरीके से कोई अगर IAS बनना चाहता है, IAS ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसको भी प्रीलिम्स देनी पड़ती है। प्रीलिम्स में पास होने के बाद मेंस देनी पड़ती है, और मेंस में पास होने के बाद उसको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ता है, और तीनों एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर ये तय किया जाता है सरकार के द्वारा, इंटरव्यू लेने वाले लोगों के द्वारा, कि वो IAS एग्ज़ाम में पास होकर IAS ऑफिसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसी तरह से अगर किसी कॉलेज को ऑटोनॉमी लेना है तो उसको 3 महत्वपूर्ण एग्जाम पास करनी पड़ती हैं। What are these 3 steps or what are these 3 examinations which one college has to clear? So I would like to tell you, my friends, these 3 examinations are: first is permanent affiliation, the second exam is accreditation, and third exam is autonomy. So now I will tell you how these 3 examinations have the meaning of and how one can pass these 3 examinations. Let us see the permanent affiliation, which is the first examination. किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज एफिलेटेड होता है उसके पास हर साल यूनिवर्सिटी की एक कमेटी आती है जो वहाँ की सुविधाएं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरीज सबका इंस्पेक्शन करके ये तय करती है कि इस कॉलेज को अगले साल के लिए कॉलेज चलाने की परमिशन देना या ना देना। इसको हम बोलते हैं एफिलेशन। एवरी ईयर द एफिलेशन इज़ रिक्वायर्ड, और वो एफिलेशन की जो मार्क लिस्ट रहती है, उस मार्क लिस्ट में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो आपको वो 2 साल का एफिलेशन देते हैं, 3 साल का एफिलेशन देते हैं, और अगर आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिलता है, एक्सीलेंट ग्रेड मिलता है उस एग्ज़ाम में जो कमेटी आई है उसने, तब आपको परमानेंट एफिलेशन मिलता है। ये हुई हमारी पहली एग्ज़ाम। ये कमिटीज़ जो आती हैं, इन सब कमिटीज़ में काफ़ी बड़े बड़े सीनियर लोग, डॉक्टरेट लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर वो रहते हैं, और वो तय करते हैं कि इस कॉलेज को हम 1 साल का एफिलेशन दें, 2 साल का दें, 3 साल का दें, या परमानेंट एफिलेशन दें। तो JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को परमानेंट एफिलेशन मिला है, और ऐसे यूनिवर्सिटी में काफ़ी कॉलेजेस को परमानेंट एफिलेशन मिला हुआ है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। यह हो गई हमारी पहली स्टेप, पहली एग्ज़ाम। दूसरी एग्ज़ाम क्या है? एक्रेडिटेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्रेडिटेशन। अगर आपका परमानेंट एफिलेशन है तो आपको जो एक्रेडिटिंग एजेंसी है उस एक्रेडिटिंग एजेंसी को अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ से एक कमेटी आती है, वो कमेटी भी स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, नॉन टीचर्स का, एल्यूमिनाई का, पेरेंट्स का, इंडस्ट्री के लोगों का, मैनेजमेंट का, इन सब का मीटिंग लेती है। तमाम सुविधाएं जो कॉलेज में अवेलेबल हैं वो एक स्टैंडर्ड की हैं कि नहीं, बच्चे उसमें कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं, टीचर्स उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये तमाम पैरामीटर्स को देखने के बाद वो ये तय करती हैं कि इस कॉलेज को एक्रेडिटेशन दिया जाए या नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्रेडिटेशन क्या है या एक्रेडिटेशन की स्टैंप का मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि आप सोना खरीदने जाते हैं, है ना। तो सोना खरीदने जब जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं सोने के गहने खरीदते वक्त कि उसमें हॉलमार्क स्टैंप लगा है कि नहीं लगा। अगर हॉलमार्क स्टैंप लगा हुआ है, आप ये चेक कर लेते हैं और आपको मिल जाता है वो हॉलमार्क स्टैंप, तो आप ये संतुष्ट हो जाते हैं कि ये जो सोने की क्वालिटी है ये 99.99% प्योरिटी की है। हीरा खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का उस डायमंड को सर्टिफिकेशन उसकी प्योरिटी के लिए है कि नहीं। अभी ये कोविड की सिचुएशन में मान लीजिए आप सैनिटाइज़र खरीदने जाते हैं, PPE किट खरीदने जाते हैं, मास्क खरीदने जाते हैं, हम एक्सीडेंट से बचाव के लिए हेलमेट खरीदने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे ISI स्टैंप है कि नहीं है।
कुछ खाने की चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया का FSSI जो है उसका मार्क है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि FSSI, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हम जिसको बोलते हैं, और हॉलमार्क, ये एक तरह की प्योरिटी की, क्वालिटी की गारंटी है। इसी तरीके से एक्रेडिटेशन जो है वो भी एक स्टैंडर्ड्स, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि एक अच्छी संस्था में, अच्छे कॉलेज में होना चाहिए, उसकी ये गारंटी है। मैंने आपको बताया इसके लिए बहुत हाई पावर कमेटी आती है जिसके चेयरमैन किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हैं और बाकी मेंबर्स भी बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, और वो ये बताते हैं कि इस संस्था को अगर हम एक्रेडिटेशन दे रहे हैं तो दिस इंस्टीट्यूट गारंटीज फॉर मिनिमम क्वालिटी, इट फुलफिल्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स which are stipulated by the apex body of the technical education. एक्रेडिटेशन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपका एक्रेडिटेशन है या आपका एक्रेडिटेशन नहीं है। और एक्रेडिटेशन की ग्रेड समझने की कोशिश करिए। एक्रेडिटेशन में बी ग्रेड भी मिलता है, B+ ग्रेड भी मिलता है, B++ ग्रेड भी मिलता है, A ग्रेड भी मिलता है, A+ ग्रेड भी मिलता है। लेकिन अगर आप परमानेंट एफिलेटेड हैं तो ही आप एक्रेडिटेशन को जा सकते हैं। हमने पहली एग्जाम पास कर लिया, अब हम दूसरी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। दूसरी एग्जाम में अगर आपको A ग्रेड मिलता है तभी आप तीसरी स्टेप पे जा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो अभी आपको ये मतलब समझ गया होगा कि जिस कॉलेज को एक्रेडिटेशन ग्रेड A मिलता है वो कॉलेज एक निश्चित स्टैंडर्ड का कॉलेज है, और वो चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन under the Ministry of Human Resource Development, New Delhi, the committee comes, checks and certifies that this college is eligible for accreditation with grade, जो भी ग्रेड उनको मिलती है। लेकिन अगर आपको A ग्रेड मिली है तभी आप ऑटोनॉमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्रेडिटेशन की वैल्यू क्या है, क्यों हमने एक्रेडिटेशन लेना चाहिए, या क्यों हमने एक्रेडिटेड कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग में, आपके पेरेंट्स के दिमाग में आ सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये मैंने आपको बताया कि एक्रेडिटेशन मतलब ये वो कॉलेज है जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का फॉलोअप होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी पेरेंट को उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं है और उनको अपने बच्चे को किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, और वो कॉलेज अगर एक्रेडिटेड है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंक वगैरह, वो उनको आसानी से लोन देती हैं। और स्टूडेंट ट्रांसफरिंग बिटवीन एक्रेडिटेड प्रोग्राम, एक एक्रेडिटेड प्रोग्राम से दूसरे एक्रेडिटेड प्रोग्राम में अगर स्टूडेंट को ट्रांसफ़र चाहिए है तो वहाँ पे बहुत आसानी से इक्विवेलेंस मिल जाता है। मान लीजिए इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिकल करने के बाद या आर्किटेक्चर करने के बाद आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं एडमिशन लेना है, से फॉर एग्जांपल अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, यूके यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके आपको मास्टर ऑफ साइंस करना है, MS करना है। और अगर आपने जिस कॉलेज से एग्ज़ाम पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग मेडिकल किया है, वो कॉलेज अगर एक्रेडिटेड है और ऑटोनमस है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आपकी मार्कशीट्स पे वो सब लिखा रहेगा, और जब आपका एवेल्यूएशन होगा एडमिशन देने के लिए, जब आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो अगर आप एक्रेडिटेड और ऑटोनमस कॉलेज से पास हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपको वहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एक्रेडिटेशन की वैल्यू क्या है। उसके बाद ऑटोनॉमी क्या होती है, थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, ऑटोनॉमी। अब मैं परमानेंटली एफिलेटेड हूँ, एक्रेडिटेशन ग्रेड A है, अब मैंने अप्लाई कर दिया कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट को 10 साल भी पूरे हो गए हैं, परमानेंट एफिलेटेड भी हो गया है, एक्रेडिटेशन में ग्रेड A भी आ गई है। फिर हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे प्रस्ताव पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक हाई पावर कमेटी भेजती है। वो 3 दिन तक उस इंस्टीट्यूट में रहती है, 3 दिन तक लगातार वो यहाँ पे इंस्पेक्शन करती रहती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एल्यूमिनाई, इंडस्ट्री पीपल, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सभी से मुलाकात करके फिर वो तय करते हैं कि ये कॉलेज ऑटोनॉमी देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को ऑटोनमस इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हुआ है और 2019-20 से कॉलेज को ऑटोनॉमी मिली है। 2019-20 में फर्स्ट ईयर में ऑटोनॉमी थी और अभी सेकेंड ईयर में भी ऑटोनॉमी है। इसी तरीके से धीरे धीरे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर भी ऑटोनमस हो जाएंगे और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो एक्रेडिटेड और ऑटोनमस कॉलेज से अपनी डिग्री लेके जाएंगे और उनको तमाम तरीके के बेनिफिट जो होते हैं वो मिलेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं।
ऑटोनॉमी का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियोलॉजिस्ट, तो हम क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डियो एंड लॉजिस्ट, मतलब वन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन दी एलिमेंट्स रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ऑटोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ और नॉमी मतलब गवर्निंग, लॉ गवर्निंग। तो जो कॉलेजेस सेल्फ गवर्निंग कॉलेजेस होते हैं, मतलब जिन कॉलेजेस को अपने एकेडमिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, करिकुलम के बारे में, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी के बारे में, असेसमेंट के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की जिनको परमिशन है, जिनको अधिकार है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज। मीन्स द कॉलेजेस आर सेल्फ रेगुलेटेड एज फार एज द ऑटोनॉमी इज कंसर्न्ड। अब ऑटोनॉमी का जो फ़ायदे हैं मैं आपको और बताने वाला हूँ। देखिए, अभी हम अपना करिकुलम, अपना सिलेबस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे? हमारी जो लोकल नीड्स हैं, ग्लोबल नीड्स हैं, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, उसके बेसिस पे हम अपना सिलेबस रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेमेस्टर में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये 6 महीने पूरे होते होते, सिलेबस पूरे होते होते हमको ऐसा समझ में आया कि इसका एक पोर्शन या एक सॉफ्टवेयर हम जो पढ़ा रहे थे, वो सॉफ्टवेयर की जगह अब लेटेस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर आ गया है। तो कॉलेज क्या कर सकता है? कॉलेज तुरंत अगले बार जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, वो सिलेबस का उतना पोर्शन चेंज करके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर देगा। मतलब क्या हो गया कि हम अपने कॉलेज की टीचिंग लर्निंग को इंडस्ट्री की टीचिंग लर्निंग के साथ में अलाइनमेंट कर लिए हैं। जो इंडस्ट्री में चल रहा है वही कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में हम कोई एक चेंज करना चाहते हैं, तो वो जब चेंज करने की हम बात करते हैं और चेंज करने के लिए जब हम प्रस्ताव सादर करते हैं, तो उस समय चूँकि हर विद्यापीठ की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है, उसमें बहुत समय लग जाता है और हम अपने सिलेबस को इंडस्ट्री के सिलेबस के साथ में अलाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑटोनॉमस सिस्टम की, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की ये ब्यूटी है कि जैसे ही पता चला, जैसे ही समझ में आया, क्योंकि हमारे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ रहते हैं, एकेडमिक काउंसिल रहती है, इसमें इंडस्ट्री के लोग नॉमिनेटेड रहते हैं, ऐसी यूजीसी की तरफ से रिक्वायरमेंट भी है। तो वो इंडस्ट्री के लोग जो हमारे यहाँ मीटिंग के लिए आते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपके सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर है या आपके सिलेबस में ये जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं ये आउटडेटेड हो गई है। तो ऑटोनॉमस सिस्टम में चीज़ों को इम्प्रूव करना, चीज़ों को समय के साथ बदलना, चीज़ों को इंडस्ट्री की स्पीड के साथ में मैच करना आसान होता है। रेगुलर यूनिवर्सिटी सिस्टम में यहाँ दिक्कत जाती है और सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता है। ये कुछ बेनिफिट्स ऑटोनॉमस सिस्टम के होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि अगर ये फ्रीडम किसी इंस्टीट्यूट को मिलती है, टीचर्स को मिलती है और स्टूडेंट्स को मिलती है, सो एट द सेम टाइम उनके पास दो जवाबदारी भी आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम, फॉर फ्रीडम everybody has to pay some price. That freedom may be of any time. Similarly, here for the autonomy freedom या autonomous freedom या curriculum change freedom, one has to have the complete accountability and responsibility. Let us try to understand. अभी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हम autonomous college इतनी बात कर रहे हैं, तो हमारे पूरे देश में autonomous colleges का स्टेटस क्या है? देखिए, मेरा जो पॉइंट नंबर 1 to 4 मैंने लिखे हुए हैं स्लाइड पे। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि हमारे कॉलेज में टोटल 29 राज्य हैं। देर आर 29 स्टेट्स द कंट्री, एंड इन दीज 29 स्टेट्स देर आर 935 यूनिवर्सिटीज़ लाइक नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी, बॉम्बे पुणे यूनिवर्सिटी, लाइक दिस the universities of Maharashtra state. In the entire country, in 29 states, we have 935 universities. और इन 935 यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास लगभग 39,000 39,931 कॉलेजेस हैं, क्लोज टू 40,000। और ये 40,000 कॉलेजेस में जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से 755 मतलब क्लोज टू 800 कॉलेजेस ऑटोनॉमस है। देखिए, अब ये स्टेटिस्टिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। 40,000 में से 800 मतलब कितना हो गया? 2%। सिर्फ 2% कॉलेज ही ऑटोनॉमस हैं। उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा 13 लाख से 14 लाख लोग, 14 लाख स्टूडेंट्स जब JEE की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से करीब 14,000 से 15,000 बच्चों का एडमिशन
IITs में होता है, कुछ और बच्चों का एडमिशन IIITs, NITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में होता है। कैसा हो गया कि आउट ऑफ 13 lakh स्टूडेंट ओनली 13,000 स्टूडेंट्स आर सीकिंग द एडमिशन और गेटिंग द एडमिशन एज पर द कट ऑफ इनटू द IITs। मतलब परसेंटेज कितना है? 1। क्यों 1% है वो? क्योंकि जिस लेवल की ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, JEE एग्जामिनेशन है या नीट एग्ज़ाम है, वो उसका लेवल इतना क्वालिटेटिव है या इतना ऊंचे दर्जे का है कि उसमें सिर्फ वही बच्चे सफल हो पाते हैं जिन बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से ऑटोनमस स्टेटस लेने के लिए जो 3 स्टेप्स हैं एग्ज़ाम की, परमानेंट एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन एंड देन ऑटोनॉमी कमेटी, ये भी उतनी डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी नहीं मिल पाती है। कंक्लूजन इज द कॉलेजेस विच आर गेटिंग ऑटोनॉमी आर दी बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री एज फार एज द ऑटोनमस स्टेटस इज कंसर्न्ड। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी देखिए ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि द नंबर ऑफ ऑटोनमस कॉलेजेस इन तमिलनाडु आर हाईएस्ट, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश एंड देन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्लोज टू 100 कॉलेजेस आर ऑटोनमस एंड इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू कि 100 ऑटोनमस कॉलेजेस जो महाराष्ट्र में हैं उसमें से 31 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑटोनमस हैं। मतलब लगभग 31 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो ऑटोनमस हैं। इसका मतलब कैसा हुआ कि 98 टोटल कॉलेजेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, लॉ, सभी कुछ है उसमें। इस 98 में से 31 कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट में ऑटोनमस कॉलेजेस में आते हैं। तो एक ये बड़ा परसेंटेज है और हमारी स्टेट पे हमें गर्व होना चाहिए कि इस स्टेट में 31 कॉलेज ऑटोनमस हैं। लेकिन फिर भी 250 के लगभग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है महाराष्ट्र में से, तो उसमें से 31 कॉलेजेस ऑटोनमस होना मतलब हम बोल सकते हैं क्लोज टू 12%। द नेशनल एवरेज इज 2%, वेयर इज द महाराष्ट्र एवरेज इज क्लोज टू 12% टू 13%। तो इससे आपको और एक चीज़ पता चलती है कि ऑटोनमस कॉलेजेस की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी महाराष्ट्र में देखिए, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस दैट इज अराउंड 39% आर इन मुंबई, फॉलोड बाई पुणे एंड देन द शिवाजी यूनिवर्सिटी लाइक। ओके, अब हमको एक चीज़, अभी ये मैंने आपको पूरा बताया कि ऑटोनमस कॉलेजेस का स्टेटस क्या है, ऑटोनॉमी मिलती किस तरीके से। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटोनमस कॉलेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ऑटोनमस कॉलेजेस काफ़ी दिक्कत के बाद ऑटोनॉमी का दर्जा मिलता है और ऑटोनॉमी में इतनी सारी सुविधाएं होती हैं बच्चों के लिए। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है ऑटोनमस कॉलेज में जिससे इनका दर्जा बढ़ता है, जिससे इनकी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी अच्छी होती है, जिससे बच्चों को प्लेसमेंट में मदद मिलती है, जिससे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में मदद मिलती है। ऐसा क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पर आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है इसकी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी फॉलो होती है। टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब आपने ये पहली बार सुना होगा वो भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन होता क्या है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: कोर्स आउटकम, इंस्ट्रक्शंस, असेसमेंट एंड एवेल्यूशन। लेट अस टॉक अबाउट द कोर्स आउटकम। जब भी मेरे को किसी विषय का सिलेबस बनाना है तो पहले मैं क्या करता हूँ? पहले मैं ये तय करता हूँ कि इस सिलेबस के माध्यम से मैं बच्चे को क्या सिखाना चाहता हूँ। व्हाट अ स्टूडेंट शुड लर्न at the end of the course means I must know the learning outcome, I must know the course outcome। अगर मान लीजिए मैंने आपको फिजिक्स का पहला 1 घंटे का टीचिंग आपकी क्लास में किया और मेरा ये उसमें से आउटकम होना चाहिए था कि एट द एंड ऑफ दिस 1 hour क्लास ऑफ माइन इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट शुड लर्न ओम्स लॉ। फिर 1 घंटे की टीचिंग होने के बाद मैं बच्चों से फीडबैक लेके, मैं बच्चों से प्रश्न पूछ के या मैं उनका टेस्ट लेके या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ के मैं ये तय करूँगा कि 1 घंटे की टीचिंग के बाद मैंने तय जो किया था कि बच्चों को ओम्स लॉ आना चाहिए, क्या उनको ओम्स लॉ आया। अगर मतलब क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड आउटकम वॉज ओम्स लॉ एंड अचीव्ड आउटकम इफ इज ओम्स लॉ, देन एक्सपेक्टेड आउटकम इज इक्वल टू अचीव्ड आउटकम। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। मैं बच्चे को जो पढ़ाना चाहता था वो बच्चे को समझ में आ गया।
मतलब कोर्स आउटकम अचीव हो गया, एक्सपेक्टेड आउटकम इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड आउटकम, मीन्स आई मीन टू से दैट अचीव्ड आउटकम इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड आउटकम। इस तरीके से कोर्स आउटकम डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए मेरे को ये बताना था बच्चे को कि मैं अब दूसरे घंटे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और मेरा उसका कोर्स आउटकम है कि बच्चे को हुक्स लॉ पता होना चाहिए। मैंने 1 घंटे पढ़ाया, बच्चों का टेस्ट लिया या उनसे क्वेश्चन पूछे, असेसमेंट टूल का यूज़ किया, और फिर मेरे को पता चला कि 60 बच्चों में से हुक्स लॉ सिर्फ 40 बच्चों को समझा है। व्हाट डज इट मीन? कि एक्सपेक्टेड आउटकम इज नॉट इक्वल टू अचीव्ड आउटकम, देयर इज अ गैप। There are 20 students who did not understand the Hooke's law after my teaching of 1 hour. ये इस तरीके से हम गैप कैलकुलेट करते हैं बच्चों की असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम से। और फिर बाद में एक बार हमने कोर्स आउटकम तय कर दिए कि फिजिक्स कोर्स पढ़ने के बाद में बच्चे को ये आना चाहिए, और उसके बाद असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि बच्चों को वो सब समझ में आ गया है, तो आपका कोर्स पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ। और अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है तो उसमें गैप है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोर्स पढ़ाएंगे तब आपको ये तय करना पड़ेगा कि वो कोर्स के बीच में जो गैप था, एक्सपेक्टेड और अचीव्ड आउटकम के बीच में जो गैप था, वो कैसे पूरा होगा। फिर इसके बाद हम कोर्स आउटकम तय करने के बाद में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्लास में, टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, और टीचर्स क्लास में पढ़ाने के बाद में हम असेसमेंट लेते हैं उनका। असेसमेंट मतलब उनके एग्ज़ाम लेते हैं और उस एग्ज़ाम का चेक करके उनका रिजल्ट निकालते हैं, और ये चेक करते हैं कि हम जैसा बच्चों को समझाना चाहते थे क्या वैसा बच्चों को समझ में आया। इसका अंत में मतलब ये होता है कि कोर्स आउटकम, इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी अलाइंड। वो तीनों एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। जो कोर्स आउटकम तय किया उस तरह की टीचिंग करिए, और जिस तरह की टीचिंग लर्निंग की उस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछिए, और उसका उसी तरीके से आप इवेल्युएट कीजिए। रिजल्ट आने के बाद तय कीजिए कि आपने जो सोचा था आउटकम के माध्यम से क्या वो आपको मिला। This type of teaching learning methodology is followed in the autonomy system, to which we say that outcome based education. अब ये जो OBE है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, ये क्या तय करती है? ये तय करती है कि लर्निंग इज अ लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंट्रिक। सो व्हाट टीचर्स विल डू? टीचर्स विल एक्ट एज फैसिलिटेटर, मेंटोर, एडवाइजर or guide. They will handhold you, they will explain you the concept if you stuck up somewhere. Conceptual discussion होंगे, problem solving session होगा, और एक brainstorming और चर्चा का सेशन भी होगा जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो आपसे 1 हफ्ते की टीचिंग में एक्सपेक्टेड था, क्या आपने वो पूरा सीखा है। Hence, the student is a learner, student centric teaching learning methodology, and learning is a learner's responsibility. Teachers will act as facilitator and mentor. So what do you want the student to have or able to do? Means what skill set teachers want to inculcate into the students in terms of the skills by way of teaching into the class through the curriculum. Or how can you best help students achieve it? You have to become the guide, mentor. How will you know what they have achieved? उनको जो हम पढ़ाना चाहते थे वो पढ़ने में आया कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? असेसमेंट और इवैल्यूएशन से। और हाउ डू यू क्लोज दी लूप? ये जो क्वालिटी लूप है ये क्लोज कब होगा? ये क्वालिटी लूप तभी क्लोज होगा जब मैं बच्चे को जो पढ़ाना चाहता था वो उसको समझ में आ गया है, एक्सपेक्टेड आउटकम और अचीव्ड आउटकम मैच हो गए हैं। इसका मतलब है कि मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस पूरा हो गया, और वो जो स्किल मैं बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहता था वो स्किल बच्चे के अंदर डेवलप हो गई। आई टोल्ड यू दैट असेसमेंट इज अ प्रोसेस by way of which I gather the data of the students' examination, I evaluate them, and after evaluation I decide that where is a gap. गैप क्यों आता है? गैप क्यों आता है मेरे को बताइए। अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा है, उसके बाद भी वो जो पढ़ा रहा है आपको समझ में नहीं आता, ये गैप क्यों आती है? गैप आने के दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो टीचर ने मुझे पढ़ाया
या जो इंस्ट्रक्शंस द टीचर हैज़ इम्पार्टेड, दोज इंस्ट्रक्शंस वेयर नॉट अप टू द मार्क टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि मैंने जो कोर्स आउटकम तय किया है, मैंने ये जो तय किया है कि बच्चों को इस कोर्स के बाद में ये आना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये समझ में आना चाहिए, वो ओवर एम्बिशियस है, वो टारगेट मैंने कुछ बड़ा तय कर दिया है। ये दो ही कारण होते हैं। और उसमें पहला कारण जो है कि देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन इन इम्पार्टिंग द इंस्ट्रक्शंस बाय द टीचर इज नॉर्मली फाउंड इन मेजॉरिटी। सो on the basis of the feedback of the student, that teacher has to improve, his seniors will tell him as to how to improve in order to bridge the gap and next time to reduce the gap. अब देखिए आप इसमें यहाँ पे हमको ऑटोनॉमी की ज़रूरत क्यों है? What is the need of autonomy? Autonomy is very much essential to achieve resource based approaches, मतलब independent use of learning resources. आपको एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ मैं कि एक कोर्स है स्वयं में, एनहेंसिंग कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस ऑनलाइन कोर्स को, जो कि 7 IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको हम NPTEL बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, 15,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। और ना सिर्फ भारत के, बाकी के देश के भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया। मतलब एक समय में 15,000 बच्चे एक कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। हैव यू एवर सीन इट? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट यूज ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट यूज ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी। आप अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, कोई लैपटॉप पे पढ़ रहा है, कोई डेस्कटॉप पे पढ़ रहा है, कोई आईपैड पे पढ़ रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ रहा है। आप एयरपोर्ट पे जाके कहीं जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट 1 घंटे लेट हो गई, आप वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिए। यू आर गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक, you are using the earphone, and even during the morning walk you are learning that course. See how much freedom is granted to you with accountability and responsibility. That is what is the importance of independent use of learning resource, independent use of learning technology, and that is what is the benefit of the autonomy. Then focus on teacher roles and teacher education, control over classroom decisions, कंट्रोल ओवर करिकुलम डिसीजन। मैंने जो आपको पहले बताया कि हमारा पूरा कंट्रोल सिलेबस के ऊपर रहता है, हमारा पूरा ध्यान इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके ऊपर रहता है। इसीलिए ऑटोनॉमी की ज़रूरत है, और ऑटोनॉमी होने के कारण हम ऑटोनॉमस हो जाते हैं। ऑटोनॉमस हो जाने के कारण हम जैसा चाहते हैं वैसा स्टूडेंट्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से अपना सिलेबस तय करके और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स बना सकते हैं। Now this slide is very very important, to which I call features of autonomy. इसका पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है फ्लेक्सिबल करिकुलम। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया कि हमारा सिलेबस फ्लेक्सिबल रहता है, इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है। दूसरा इसका पॉइंट है मॉडल करिकुलम ऑफ AICTE अडॉप्टेड। AICTE जो है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री to regulate the technical education, professional education in the country. पूरे निर्णय AICTE द्वारा लिए जाते हैं। तो AICTE ने एक बहुत ही हाई पावर कमेटी बना के, जिसमें IITs के, IIITs के, NITs के प्रोफेसर थे, और उन्होंने ये तय किया कि आप अब ये तय कीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मॉडल करिकुलम क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन दी current industry scenario and the industry scenario which has to come after 5 years down the line. 5 साल बाद क्या होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए, और AICTE ने एक मॉडल करिकुलम प्रपोज किया। और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैज़ adopted this model curriculum of AICTE as it is, and this college also has followed that model curriculum of the AICTE, being the autonomous college. एमर्जिंग एरियाज़ इनकॉर्पोरेटेड, IIT हैदराबाद के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मूर्ति। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें बहुत सीनियर प्रोफेसर्स एंड रिनाउंड प्रोफेसर्स थे। उस कमेटी को ये जवाबदारी दी गई कि आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे कुछ एरियाज़ बताइए जिसमें अगले 10 सालों तक, अगले 5 सालों तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
उस कमिटी ने अपना रिपोर्ट दिया और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट प्रोफेसर मूर्ति इज़ अ पास आउट ऑफ विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर. ही इज़ एन alumni ऑफ दैट. ही डिड हिज BTech in metallurgy from VNIT and has become the director of the IIT Hyderabad today. Okay. So what are these emerging areas? I will show you the emerging areas क्या क्या है. आपको भी, आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आते हो, आपको भी समझ में आएगा कि ये emerging areas कौन से हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंसेस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऐसे जो तमाम फील्ड्स हैं, इनको उन्होंने बताया कि एमर्जिंग एरियाज़ हैं. अब ये एमर्जिंग एरियाज़ तो पता चल गए, मॉडल करिकुलम तो पता चल गया, लेकिन इसका ऑटोनॉमी से संबंध कैसे बिठाया जाता है, अब मैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं BTech ऑनर्स. आपने अपने मम्मी पापा से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कभी सुना होगा कि उन्होंने उनका BA BCom ऑनर्स में किया. उस समय 75% के ऊपर जिसको भी नंबर मिलते थे उसको BA ऑनर्स BCom ऑनर्स डिग्री दी जाती थी, और धीरे धीरे वो डिग्री विलुप्त हो गई, मतलब ख़त्म हो गई. अभी हम लोगों को साधारण डिग्री मिलती है BA BCom. लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने एक प्रोविज़न किया है कि आपको मान लीजिए BTech चाहिए, वो तो आप 4 साल का कोर्स पढ़ के कर लेंगे. 4 साल का कोर्स मतलब 160 क्रेडिट्स, और एक क्रेडिट का मतलब है लगभग 15 घंटे. तो 160 क्रेडिट्स अगर आप 4 साल में पूरे करते हैं तो आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी. लेकिन अगर आपको BTech ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे, जिनका टोटल 20 क्रेडिट्स के 18 से 20 क्रेडिट के बराबर होना चाहिए. अब वो कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने आपको अभी एमर्जिंग एरिया की लिस्ट बनाई. तो आप 160 क्रेडिट पूरे कर लीजिए 4 साल में, और आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अगर आपने ब्रांच ली है तो उसमें मिल जाएगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको BTech ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिले, तो आपको 20 क्रेडिट के एडिशनल कोर्सेज 3 से 4 साल के अंदर में करने पड़ेंगे. या तो आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं इंजीनियरिंग से, या आप फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा लगता है कि अभी नया नया इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया है तो आप सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं. तो सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर से लेके तो 8th सेमेस्टर तक, मतलब टोटल 6 सेमेस्टर में आप 6 कोर्स, हर सेमेस्टर में एक कोर्स क्लियर करके 20 एडिशनल क्रेडिट ले सकते हैं. और वो कोर्स आपको क्लास में आके, कॉलेज में आके नहीं करना है. वो कोर्स आपको ऑनलाइन, जिसको हम बोलते हैं MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने घर में बैठ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो आपको करना है. और वो पूरे कोर्सेज IIT के प्रोफेसर्स, IIIT के प्रोफेसर्स आपको डिलीवर करेंगे ऑडियो वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से. आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको ऑडियो वीडियो भी पढ़ाया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, आपकी एग्ज़ाम भी ली जाएगी. टोटल आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है. मतलब कॉलेज में आपको आना है 160 क्रेडिट पूरा करने के लिए, जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होता है, और नहीं तो ऑनलाइन पढ़ना है. और एडिशनल 20 क्रेडिट्स अगर आप ले लेते हैं तो वो एडिशनल 20 क्रेडिट्स जैसे ही आप लेते हैं तो आपको BTech ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री मिल जाती है. अब वो 20 क्रेडिट के कोर्सेज हम कौन से लें, आपके सामने एक प्रश्न ये रह सकता है. तो हमको क्या करना है? हमको उन एमर्जिंग एरियाज़ के कोर्सेज लेना है जिसमें आज देश के अंदर, देश के बाहर बहुत बड़ी तादाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ अवेलेबल है. तो वो कौन से एरियाज़ हैं? अभी मैंने आपको इसके पहले बताया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा कोर्सेज? तो उसके लिए जो ऑटोनमस कॉलेज हैं उनमें पूरी उनके कोर्सेज रेडी हैं, उनके क्रेडिट्स रेडी हैं, उनके सिलेबस रेडी हैं. वो कोर्सेज आपको कहाँ से करने हैं, इवन वो पोर्टल का नाम, वो प्रोफेसर का नाम, वो IIT का नाम भी रेडी है. अब हमने ये तय कर लिया, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं जिसको BTech ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में चाहिए, लेकिन वो एडिशनल 20 क्रेडिट्स किसी स्पेशलाइजेशन में करना चाहता है. 6 सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना चाहता है 20 क्रेडिट के, जो 6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको एक स्पेशलाइजेशन का पूरा ज्ञान हो जाए जिसमें एनॉर्मस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एग्जाम्पल के लिए आपने तय किया कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है,
तो हम आपको साइबर सिक्योरिटी के 6 कोर्सेज बताएंगे, जिसका टोटल क्रेडिट 18 से 20 होगा, और वो टोटल क्रेडिट आपको 6 सेमेस्टर्स में पूरा करना है, 3rd सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। आराम से एक एक सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पास करते जाइए। अब आप जैसे ही वो 8वें सेमेस्टर में पहुंच के पूरे 6 सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट पास करने के बाद में आपको IIT से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू हैव क्लियर्ड दिस सब्जेक्ट अंडर द साइबर सिक्योरिटी। ऐसे आपको 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और जैसे ही आप ये 6 सब्जेक्ट पूरे कर लेंगे तो आपको एक डोमेन सर्टिफिकेट मिलेगा कि द स्टूडेंट नेम्ड एज प्रशांत महेश्वरी हैज़ डन हिज BTech in Electronics and Telecommunication with honors and completed a domain in cyber security। सोचिए आपकी मार्कशीट कितनी रिच हो गई। BTech ऑनर्स भी मिल गया, और आप साइबर सिक्योरिटी के 6 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक्सपर्ट भी हो गए। अब जिस भी बड़ी कंपनी को साइबर सिक्योरिटी में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, वो उस कॉलेज को कांटेक्ट करेगा कि आपके यहाँ साइबर सिक्योरिटी कोर्स पढ़ाया जाता है, आप ऑटोनमस कॉलेज हैं, हमको साइबर सिक्योरिटी की रिक्रूटमेंट करनी है, हमको आपके यहाँ आना है। वो आएगा, और जितने बच्चों ने भी साइबर सिक्योरिटी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या डेटा साइंस में 20 क्रेडिट्स के एडिशनल कोर्स करके BTech ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है, उन बच्चों को वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि उनको वही कैंडिडेट चाहिए। किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, किसी को डेटा साइंस चाहिए, किसी को मशीन लर्निंग चाहिए, किसी को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, और वैसे बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। वैसे बच्चों ने एडिशनल 20 क्रेडिट्स 18-20 क्रेडिट करके एक डोमेन में स्पेशलाइजेशन किया है। उनके पास में 7 एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं डिग्री के अलावा। 6 सर्टिफिकेट 6 कोर्सेज के हैं, 1 सर्टिफिकेट डोमेन का है, और सभी सर्टिफिकेट्स IIT के टीचर या प्रोफेसर या उस कोर्स को पढ़ाने वाले ने साइन करके दिए हुए हैं। देखिए कितना बड़ा कमाल हो गया। BTech ऑनर्स करते करते हम एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिसमें कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि अपकमिंग फील्ड है, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड है, उसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन का भी सर्टिफिकेट मिल गया। स्पेशलाइजेशन का भी 6 सर्टिफिकेट और एक डोमेन सर्टिफिकेट मिल गया। अभी मान लीजिए आपको एक BTech ऑनर्स डिग्री मिल गई, साइबर सिक्योरिटी में आपका स्पेशलाइजेशन हो गया। BTech ऑनर्स तो मिला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इट इज़ अ जनरल डिग्री, और स्पेशलाइजेशन काय में हो गया? साइबर सिक्योरिटी में। अब एक और बहुत सुंदर चीज़ मैं आपको ऑटोनॉमी की बताता हूँ। मान लीजिए बचपन से आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, आपको इलेक्ट्रिकल की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, आप उनको पूरा खोल के वगैरह सब देखते थे, उसके अंदर का मैकेनिज्म देखते थे, लेकिन समय ऐसा आया कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने के कारण या किसी और कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच लेना पड़ा। लेकिन अभी भी आपकी ख्वाहिश आपके मन में है, काश मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी डिग्री मिल जाती। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी, डिग्री नहीं बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन भी हम आपको इस 4 साल के अंदर ऑटोनमस इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है। उसको हम बोलते हैं माइनर डोमेन। BTech ऑनर्स विद मेजर डोमेन एज साइबर सिक्योरिटी, और आप अगर एडिशनल 20 क्रेडिट, मतलब 160 क्रेडिट का तो कोर्स, और 20 क्रेडिट आपने कर लिया मेजर स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये दोनों मिलके आपको BTech ऑनर्स की डिग्री मिल गई। लेकिन अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 20 क्रेडिट का 6 कोर्स और कर लेंगे, तो आपकी टोटल क्रेडिट कितनी हो जाएंगे? 160 BTech की, 20 मेजर डोमेन की और 20 माइनर डोमेन की, मतलब आप टोटल 200 क्रेडिट्स का डिग्री करेंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं 6 कोर्स 20 क्रेडिट के और पास कर सकता हूं इन 3 सालों में, सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, तो हम आपको जिस ब्रांच में भी आपको वो कोर्स करना है, माइनर डोमेन का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना हो, सिविल इंजीनियरिंग में करना हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करना हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना हो, तो आपको 6 एडिशनल कोर्स उस ब्रांच के पास करने पड़ेंगे, जिसका क्रेडिट 18 से 20 होगा, और तब आपकी डिग्री का नाम क्या होगा? BTech ऑनर्स विद
minor in electrical engineering, BTech honors in electronics and telecommunication with specialization in cyber security and minor as electrical engineering. अब आपकी डिग्री देखिए कितनी रिच हो गई है. बीटेक ऑनर्स भी मिल गया, साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन भी हो गया और माइनर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो गया. तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, आपकी मार्कशीट का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस तरीके से आपको ये डिग्री मिल गई. ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो भी स्पेशलाइजेशन के कोर्स होते हैं बीटेक ऑनर्स के लिए वो उस ब्रांच के एडवांस कोर्सेस होते हैं और जो माइनर कोर्सेस होते हैं दूसरी ब्रांच के वो बेसिक कोर्सेस होते हैं, एलिमेंट्री कोर्सेस होते हैं जो 12th पास स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है, मेजर और माइनर में ये डिफरेंस है. बीटेक ऑनर्स के लिए मेजर लगेगा और एडिशनल माइनर के लिए आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं जिसमें आपको बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे. अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आपकी डिग्री कितनी रिच हो सकती है ऑटोनॉमी के कारण. और ऐसा सिर्फ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहे हैं. ये इमर्जिंग एरियाज़ मैं आपको बता चुका हूँ. इम्पैक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑन प्लेसमेंट, हायर एजुकेशन अब्रॉड एंड एंटरप्रेन्योरशिप. I told you that there is a student, Prashant Maheshwari, who wants to do BTech in mechanical engineering और उसका पहले से तय है कि मेरे को बड़ी कंपनी जो है टाटा में काम करना है. मेरे को टाटा नाम की जो बड़ी कंपनी है टेलको, टिस्को, उसमें मेरे को काम करना है. उसने ये तय कर लिया. वो गया टाटा कंपनी में. टाटा कंपनी में जाने के बाद वो एक अवेयर बच्चा है, उसके पेरेंट्स भी अवेयर हैं. वो टाटा कंपनी में गया और उनसे पूछा भाई कि 4 साल का बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करने के बाद मैं आपके यहाँ नौकरी करने की इच्छा रखता हूँ, तो मेरे अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, मैंने वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू लेने के बाद मेरे को सेलेक्ट कर लें. वहाँ के एचआर मैनेजर ने उनको बताया कि आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए, ये सब्जेक्ट का आपको नॉलेज आना चाहिए. अगर ये आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है और ये सब्जेक्ट का नॉलेज है तो हम इंटरव्यू के बाद आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे. अब उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे को ये जानकारी होने के बाद उसने जो उसको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना था, तो महाराष्ट्र के जो 31 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑटोनॉमस थे उसने उन कॉलेजेस की वेबसाइट पर गया. वो 250 कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं गया, वो उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे गया जो ऑटोनॉमस थे. उसको मालूम था कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस ही इस तरीके का फ्लेक्सिबल करिकुलम देते हैं. उसने देखा कि देयर इज़ अ कॉलेज इन नागपुर नोन एज जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड इन दिस कॉलेज उसने सिलेबस देखा, वेबसाइट पे गया और उसने पता किया कि ये सॉफ्टवेयर्स और ये सब्जेक्ट इस कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं. उसने निर्णय लिया कि मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, पूरी बातचीत करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ में और उस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो पढ़ाया जाता है जो मेरे को चाहिए, या जिस इंडस्ट्री में मेरे को जॉब करना है उस इंडस्ट्री में जो चाहिए वो इस कॉलेज में पढ़ाया जाता है. तो ये एक बेनिफिट हो गया स्टूडेंट को. पेरेंट्स को क्या बेनिफिट हो गया कि अपने बच्चे को जो पढ़ना है वो उसको उस कॉलेज में पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि करिकुलम फ्लेक्सिबल है. मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स जो मिलते हैं उस मार्क्स में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे आपको मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड they give you some weightage, institute autonomous they again give you some weightage, so your weightage increases even if your percentage is little less in GRE, जो कि फॉरेन में जाने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE. टोएफल में भी आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम हैं, तो भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से पास होने के कारण, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से पास होने के कारण आपको वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं. और हमारे देश में तो आपको प्रेफरेंस मिल ही गई क्योंकि आप एक्रेडिटेड हैं, इसी देश ने एक्रेडिटेशन दिया है, इसी देश की बड़ी संस्था ने ऑटोनॉमी दी है, तो आपको यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलने में ऑटोनॉमस स्टेटस और एक्रेडिटेड स्टेटस बहुत काम आएगा. एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे काम आएगा, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो आपने ये जो नई टेक्नोलॉजी सीखी है, आपने जो मेजर डोमेन में स्पेशलाइजेशन किया है, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, दिस विल हेल्प यू to become an entrepreneur into the upcoming field. So these are the impact of autonomy in terms of the placement, higher education in India, higher education abroad and entrepreneurship. Abhi benefits of autonomy. You have seen the benefits of autonomy to students. This you have already seen.
The industry will come to the college. If I am an industry, I am the HR of an industry which wants the students who have done specialization along with their BTech in machine learning. I will search the net. I want the candidates from Maharashtra. If I want the candidates from Maharashtra, I will go through the autonomous colleges website. I will find out which college offers this particular course, specialization in this course. I will contact the training and placement officer of that college and I will schedule my interview in that college. Means जो चाहिए वो जिस कॉलेज में मिलेगा उस कॉलेज में जाएंगे, हमारा खर्चा बचाएंगे इंडस्ट्री का, और वहाँ से हम जो जैसे बच्चे चाहिए, जिस प्रोफाइल के बच्चे चाहिए उस प्रोफाइल के बच्चे लेके आएंगे. सो दैट इज़ द बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट, बेनिफिट टू द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सेविंग, कटिंग देयर कॉस्ट एंड गेटिंग द प्रॉपर कैंडिडेट, द बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड. And parents will automatically get the benefit if their child gets what he wants, what he or she wants. Industry is getting benefited. I told you, I gave you the example. Teachers also gets the benefit. Teachers are also one of the very important stakeholders of any academic institute. They also get the benefit of feeling the pride of attached with an autonomous institute, an accredited institute. Their teaching and learning methodology becomes sharp. They are exposed to the bigger world of the online education, the bigger world of the emerging technology and the areas. And the institute gets the biggest benefit that the alumni, the pass out student or the existing students of the final year are placed in very good company, and later on when they reach to the higher position in that company will come to their alma mater, will come to their own college and recruit the students from this college, will help the college financially in some of the sectors, will help the college in setting up the center of excellence with the cooperation of their industry in which he is working. And when student gets the advantage or the benefit, parents get the benefit, industry get the benefits, teachers get the benefit, institute gets the benefit, automatically the society becomes enriched. Society gets the benefit. That is what is the benefits of autonomy. Then what is the examination methodology? I have already talked about. There are various assessment tools like quiz, assignments, unit test, presentation, mini project. These are the assessment tools by way of which we gather the data that how did you perform in these tools of the assessment. After evaluation, we tell you that how much you were close to the expected outcome, how much the teacher was close to achieve the expected outcome from the students, and the gap is analyzed and we try to bridge that gap. एक बहुत अच्छा एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th साइंस, मेजॉरिटी इज ऑफ 12th साइंस और 12th स्टूडेंट्स. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट in the Technological University of Maharashtra, that is Dr. Baba Saheb Ambedkar Technological University of Maharashtra, there is an examination system in which, if by the way, unfortunately, if you fail in the main examination, then this university in autonomous colleges gives you an opportunity to immediately after 1 month to appear in the examination and clear that examination if you can. कैसा हो गया? नहीं तो कैसा होता है, आपने देखा होगा कि अभी आपने 12th का एग्ज़ाम दिए और बाय द वे आप 12th के एग्ज़ाम में किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट रुक गया, तो अब एग्ज़ाम कब होगी? 6 महीने बाद. और अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो आपके बच्चे ने एक एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद में मान लीजिए वो बच्चे का 5 में से एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, तो अब 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगी. लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेजेस और बाकी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये प्रोविज़न है कि अगर आप एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्ट रुक जाता है तो इमीडिएटली 1 महीने के बाद में मेकअप एग्जामिनेशन होती है. उस मेकअप एग्जामिनेशन में को आप क्लियर कर लीजिए. अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके बाकी और दोस्तों की तरह 1 महीने बाद जब कॉलेज शुरू होने वाला है तब आप उस क्लास में उसी अपने दोस्त की तरह आराम से बैठ सकते हैं, सुख के साथ बैठ सकते हैं जो ऑलरेडी पास हो गया है. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो 100 मार्क का पेपर होता है, 100 नंबर का जो पेपर होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. 20 नंबर दिए जाते हैं कंटिन्यूस असेसमेंट को, 20 नंबर दिए जाते हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को और 60 नंबर दिए जाते हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को, जो सेमेस्टर के बाद होती है.
ये 100 नंबर में से अगर आप 40 नंबर लेके आते हैं तो आपको पास डिक्लेयर किया जाता है। उससे ज़्यादा आपको लाना ही है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, लेकिन मिनिमम अगर 40 भी लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो पहला पार्ट जो है कंटिन्यूस असेसमेंट का 20 नंबर, वो कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम ली जाती है। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 20 मार्क का है उसमें भी कॉलेज लेवल पे एग्जामिनेशन ली जाती है। कई बार पेपर यूनिवर्सिटी से आते हैं, कई बार कॉलेज के लोग सेट करते हैं, और जो आखिरी का 60 नंबर है उसकी पूरी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेती है। लेकिन ऑटोनॉमस सिस्टम में वो आखिरी एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर सिस्टम, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट लेता है। मतलब तीनों ही एग्जामिनेशन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट लेता है। कंटिन्यूस असेसमेंट 20 नंबर, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 20 नंबर और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 60 नंबर। ये कुछ आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए एग्जामिनेशन मेथडोलॉजी के। और इसके बाद मैं ये प्रेजेंटेशन मेरा आज का जो है इसको यहाँ विराम देता हूँ। और मैंने जो सोचा था कि ये प्रेजेंटेशन देने के बाद पार्टिसिपेंट्स इतनी चीज़ें घर लेके जाएंगे, जो मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया था, अगर आप उतनी चीज़ें घर लेके जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। एक्सपेक्टेड आउटकम इज़ इक्वल टू अचीव्ड आउटकम। लेकिन अगर कुछ चीज़ कम लेके जा रहे हैं तो आप लोकमत को उसका फीडबैक दीजिए, लोकमत समाचार समूह को फीडबैक दीजिए और बताइए कि हमको ये कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। मैं वो गैप जो है मेरे समझाने और आपके समझने के बीच का, उसको ब्रिज करने की कोशिश करूंगा। और अगले मर्तबा जब मैं आपसे मुखातिब होऊंगा तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि वो चीज़ें आपको समझ में आएँ जो मेरे आज के डेलिब्रेशन से समझ में नहीं आई हैं। एट द एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल to all the participants who heard me patiently and they could take something out of this seminar. I am also thankful to the parents, those who are present in this participation, and also thankful and grateful to the Lokmat group of newspapers, their team, Mr. Ashish, and their camera people and technicians, JD College of Engineering and Management, who have given me this opportunity to present before you as a speaker on Autonomous Institute Benefits Unlimited. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Maheshwari, for deliberating in detail on the benefits of being part of an autonomous institute. Your depth of understanding and your ability to present the subject in such an interesting manner will, I am sure, leave a long-lasting impression on our listeners. I would also like to thank Mr. Ashish and the team of Lokmat for their splendid support in today's program. Thank you, my dear participants, for your patient listening. Thank you and be safe.